Hello everyone, how are you? I hope you all are very well. So I'm back with a new video, and in the previous video what we had discussed, we had gone through the types of vegetation in which we had discussed the tropical evergreen forest. Okay, so in this video what we are going to discuss, we are going to discuss the tropical deciduous forest. Okay, so let's begin. Okay, so as we have gone through the tropical evergreen forest, okay, so what are the characteristics that they are present between the tropical region, and they never shed their leaves, है ना? They are called evergreen because they seem green throughout the year, okay, but tropical deciduous forests are a little bit different from the tropical evergreen. Okay, so what does the deciduous means? So the deciduous forest, okay, so one of the important characteristic, or you can say the property of tropical deciduous forest, is that they shed their leaves on a specific time. Okay, tropical evergreen forests do not shed their leaves, but tropical deciduous forest shed their leaves on a specific time. And tropical deciduous forests are also called monsoon forest. Why? Because as we know, इंडिया का जो क्लाइमेट है इज अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट, सो दैट्स व्हाई the tropical deciduous forests are widespread forest in India. The tropical deciduous forests are the widespread. It means क्या कि ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं. ओके, एंड चूंकि मॉनसूनल क्लाइमेट है इंडिया में, एंड द ट्रॉपिकल deciduous forests are widespread forest in India. That's why the tropical deciduous forest is also named as monsoon forest. Okay, so I hope कि ये point आपको समझ में आ गया हो. Now what we will see now that they spread over regions which receive rainfall between 70 to 200 centimeter. Okay, so what is the another property of tropical deciduous forest is that they present in those regions where the rainfall is between 70 to 200 centimeter. Okay, now on the availability of water, on the basis of availability of water, or on the basis of amount of rainfall, the deciduous forest is divided into two types. The first is moist deciduous forest, and the second one is dry deciduous. Okay, so on what basis the deciduous forest is divided between the moist deciduous and the dry deciduous? So what is the basis? On the basis of availability of water or the amount of rainfall. Okay, so let's see these two. Okay, so first of all we look at this map which is showing the forest, different forest regions. For example, this dark green, okay, wait, so this dark green region is tropical evergreen forest, and this one is tropical deciduous forest, this one is tropical montane forest, and the different one, this is the tropical thorn forest. So this map shows the different types of forest found in India. Okay, so we were discussing the moist deciduous and dry deciduous. So this is the comparison between the moist deciduous forest and the dry deciduous forest. Okay, so a moist deciduous forest और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बीच में एक कंपैरिजन है, और दोनों को देखते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी गई हैं इसमें. तो रेनफॉल जो है मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करें तो रेनफॉल जो है आपको 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपको यहाँ पे रेनफॉल मिलेगा. And if we talk about the dry deciduous, then the rainfall ranges between 70 to 100. Okay, so by its name we can identify that the rainfall will be lesser than the moist deciduous. In the moist the rainfall is 100 to 200 centimeter, and in dry it is 70 to 100 centimeter. Okay, and the moist deciduous forest found in the northeastern states
Okay, the northeast and the seven sister states of India along the foothills of Himalayas. Okay, so I'll show you in the map which I had shown. So northeastern states, foothills of Himalayas, eastern slope of Western Ghats. And in the tropical evergreen forest, I have told you that on the western slope of Western Ghat, tropical evergreen forest are present. But in this forest, which one? The tropical deciduous. The eastern slope of Western Ghat are characterized by tropical deciduous. For example, this is a plant of the Western Ghat, and on the west side we will find tropical evergreen forest, and in the eastern side we will find tropical deciduous forest. Okay, so northeast states, foothills of Himalaya, eastern slope of Western Ghats, and Odisha. Okay, and the dry deciduous found in rainier areas of peninsula and the plains of Uttar Pradesh and Bihar. So basically in the northern region. Okay, and teak, sal, sisam, and these are the different plant species which are found in the moist deciduous forest, and tendu, palas, amatas, bell. So these plant species found where in the dry deciduous region. Okay, so let me show you the diagram. So this is our diagram which is showing the different types of vegetation cover in India, and when we will look at this image, this green portion is the tropical deciduous, and I told you right now that this is the Western Ghats. On the western side of Western Ghat we will find tropical evergreen forest, and on the eastern slope of Western Ghat we will find what? Tropical deciduous forest. Okay, so I hope that point was clear. And in this region we will find dry deciduous forest, and this foothills of Himalayas, I have told that this is the region of moist deciduous forest. Okay, let's move to our next slide. So this slide is showing some another features of dry deciduous forest. Okay, so what are the features? Let me explain you that on the wetter margins. Okay, this is a very important point which is very needed to understand. ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत important point. ओके, ये क्या कह रहा है कि जो ड्राई डेसिड, अभी यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है, सिर्फ हमारा जो मॉइस्ट का वो हमने देख लिया. यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं. सबसे पहला क्या, ऑन द वेटर मार्जिन्स it has a transition to the moist deciduous, while on the drier margin to thorn forest. Okay, कुछ समझ में नहीं आया, चलिए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा साइड कर देते हैं. चलिए इसको हम मानते हैं मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट. हमने ये तीन रीजन बना दिए, ठीक है. और चूंकि डेसिडस फॉरेस्ट डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, तो इसको ऐसे समझिए कि मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट में हम जानते हैं कि रेनफॉल ज्यादा होती है. ओके, मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट में क्या होता है, रेनफॉल इज बिटवीन 100 to 200, एंड व्हेन the rainfall will decrease, this is dry deciduous forest. तो हम जानते हैं कि ज्यादा रेनफॉल है तो वो moist deciduous forest होगा, and when rainfall will decrease, अगर थोड़ा सा रेनफॉल डिक्रीज करेगा in comparison to this one, तो फिर dry deciduous forest हो जाएगा. और अगर रेनफॉल और डिक्रीज करता है ना, अभी यहाँ पे मान लीजिए कि 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 to 200 है, तो moist deciduous forest है. फिर 7 यहाँ पे 70 to 100 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन है, तो ड्राई डेसिडुअस हो गया. और अगर रेनफॉल और डिक्रीज करेगा, है ना, अगर इसको हम ले ले 20 to 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो फिर ये किस तरफ चला जाएगा, ये चला जाएगा थॉर्न फॉरेस्ट की तरफ. तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ड्राई डेसिडुअस जो है, ये जो हमारा ड्राई डेसिडुअस है, इसको एक बार फिर से क्लीन से बनाते हैं, है ना. ये हमारा मॉइस्ट डेसिडुअस, ये ड्राई डेसिडुअस, और ये थॉर्न फॉरेस्ट. तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में क्या कह रहा है कि ऑन द वेटर मार्जिन्स इट हैज अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडुअस. अब देखिए यहाँ से दोनों तरफ ट्रांजिशन है.
यहाँ से आप मॉइस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से आप थॉर्न की तरफ भी जा सकते हैं। तो जिस साइड में वेटर मार्जिन्स होगा, मतलब यहाँ पे वेटर मार्जिन्स होगा, अगर यहाँ पे वेटर मार्जिन है, मतलब यहाँ पे रेनफॉल की जो रेनफॉल अगर इस जगह पे ज्यादा है, ठीक है, जैसे ये ड्राई है, अगर इस तरफ बढ़ेंगे और अगर रेनफॉल बढ़ रही है तो फिर ये किस तरफ आएगा, आपका मॉइस्ट रेसिड्यूज की तरफ चला आएगा। वहीं पे अगर हम ड्रायर मार्जिन की बात करें, अगर यहाँ पे रेनफॉल कम है, ड्रायर मार्जिन कब बनेगा, जब रेनफॉल कम हो जाएगा। तो अगर हम ड्रायर मार्जिन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ड्रायर मार्जिन, दैट इट विल, ये किस तरफ जाएगी, ये थॉर्न फॉरेस्ट की तरफ जाएगी, थॉर्न फॉरेस्ट। और हम जानते हैं थॉर्न फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं, सेमी एरिड या एरिड रीजन में। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं आपको इस पॉइंट को ना थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आइए अपने मैप पे आते हैं हम। चलिए, ये हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है। हाँ, अच्छा, चलिए, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा डिसिडुअस है। ओके, नाउ अगर आप बात कीजिएगा, फॉर एग्जांपल इस रीजन को मानते हैं, ये हमारा ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट था, है ना, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट था। तो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट में अगर हम इस तरफ जाएंगे तो रेनफॉल कम हो रहा है। हम जानते हैं कि राजस्थान के साइड में बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ड्रायर कंडीशन बनेगा और फिर यहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन थॉर्न फॉरेस्ट एंड एज वेल एज, यहाँ पे अगर आप आइएगा तो फिर यहाँ पे आपको मॉइस्ट डिसिडुअस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर रेनफॉल की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया ना कि अगर ये ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है, इस तरफ जाएंगे तो हमारा रेनफॉल कम होता है, तो फिर यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट आएगा जो कि सेमी एरिड और एरिड रीजन में पाया जाता है, और रेनफॉल की अमाउंट अगर बढ़ेगी तो फिर वो मॉइस्ट डिसिडुअस की तरफ जाएगा। तो ड्राई डिसिडुअस ट्रांजिशन जोन है दोनों के बीच में। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, अगला पॉइंट क्या है, दीस फॉरेस्ट हैव अ पार्कलैंड लैंडस्केप। पार्कलैंड लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, पार्कलैंड लैंडस्केप का मतलब होता है ऐसे खाली सी जमीन जो होती है, ठीक है, एकदम खाली सी जमीन जिसमें थोड़े थोड़े ग्रासलैंड होते हैं और जो पेड़ होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर पे जो पेड़ होते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो वास्ट, यहाँ पे एक और वर्ड इस्तेमाल किया गया, ओपन स्ट्रेचेस, है ना, एकदम फैली हुई जमीन जो होती है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका वो पार्कलैंड है और एक बहुत बड़ी सी जमीन है जिसमें आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे और पेड़ पौधे एक दूसरे से काफी काफी दूर देखने को मिलते हैं, मतलब घना फॉरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये ग्रासलैंड है और पेड़ जो है काफी दूर दूर पे। तो ये हमारा क्या है, तो ये जो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं, है ना, रेनफॉल कम होता है और ओपन स्ट्रेचेस लैंड होते हैं। ठीक है, पार्कलैंड लैंडस्केप होता है, यहाँ पे आपको टीक ट्री भी देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग, और फिर पैचेस ऑफ ग्रासेस भी इस जगह पे कॉमन है। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रासेस के पैचेस जो है वो आपको दिख रहे हैं, तो टीक की ट्रीज है तो और काफी ज्यादा दूर पे है, तो घने फॉरेस्ट नहीं होते हैं ड्राई डिसिडुअस में। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टीक का पेड़ है। ओके, सो आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक था। हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ लिया, हमने ट्रॉपिकल डेसिडुअस पढ़ लिया। ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बारे में क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम में अपने लीव्स को शेड करते हैं। इनका दो डिवीजन है, मॉइस्ट और ड्राई, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, और दोनों को हमने समझ लिया। ये और ड्राई डिसिडुअस का ये वाला जो पॉइंट था इसको भी हमने काफी अच्छे से समझा, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, गुड बाय।